Good morning, all of you. Good morning, sir. I hope you all are doing well. Today, we are gathered here for the very special occasion of orientation program. And in this program, you will learn about the opportunities that you are going to get in the upcoming sessions. And you will learn about the values. And I am very delightful to inform you that in very few moments, our principal ma'am will be joining us, and she will be telling you about our reforms and about our goals and about the opportunities throughout the session. So I will encourage you to listen carefully, sit attentively, and focus on our words. And if you need to note down something, you can take down notes. Okay. So I would now like to welcome our principal ma'am. Please welcome her with warm clapping. Good morning, everyone. Good morning. Hope you are all well, right? Just tell me, what is what's the biggest problem of yours when you study? So, what is the biggest problem you face? Minor thing we don't know. I'm just asking simple question that when you take English class, so what is the biggest problem of the English class? In maths class, have you cleared your basics? We talk about the English. So, smallest unit of the English. English language. What is that? Alphabet. Is it correct? Alphabet? Yes. Okay. Can you please tell me how many letters are there in alphabet? 26. So how it is smallest? How? If there are 26, A to Z, there are 26 letters, right? Yes. 26 letters. So there are 26 letters. So how it is the smallest? Simple letter. That one A, B, C. So answer is letter only. Okay? Not alphabet, because there are 26 letters are there in the alphabet. Okay? So smallest unit of English, letter. What is that? Letter. We start from letter. Now you know about the letter. 26 letters are A to Z. So A. अब मुझे ये बताइए कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं. जब A to Z स्टार्ट करते हैं तो मुझे ये बताइए कि हो सकता है छोटे बच्चे या बड़े बच्चे कोई भी भूल जाता है कि यहाँ पे किस जगह पे कौन सा लेटर आता है, राइट? तो हम उसको कैसे अपने दिमाग में हमेशा याद रखने के लिए क्या चीजें कर सकते हैं? सबकी नंबरिंग लर्न कर सकते हैं. एक फॉर्मूला होता है इजोटी. E at 5, J, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. 10, O, 15, T, 20, Y, 25. So A to E, 1 to 5, F to J. What is that? 6 to 10. आपको ये फॉर्मूला दिया गया जाए, आपको पता करना हो कि किस लेटर से किस लेटर तक जा रहे हैं, मुझे कितना आगे आपको पता करना. जैसे आपसे किसी ने सडनली पूछा P की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू क्या है? O के बाद क्या आता है? O के बाद क्या आता है? P. ठीक है. O की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू क्या होगी? 16. अब मुझे जरा इंग्लिश में ही एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए. इंग्लिश में नहीं बल्कि मैथ्स में ही, वो थोड़ा सा हम दोनों की चीजों को कनेक्ट करके चल रहे हैं. मुझे ये बताइए ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो आपके 1 to 100 में नहीं आते हैं? इंग्लिश में ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो 1 to 100 में नहीं आते हैं?
ONE1, TWO2, THREE3। हाँ, और एक चीज, कभी भी डबल ई नहीं बोला जाता, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। ये बताइए, आप जो नॉर्मली हम लोग क्या आदत होती है ना, THREE, क्या आपके इंग्लिश अल्फाबेट में कोई लेटर डबल आता है? कोई 2 बार आता है? आप 99, 999 बोल सकते हैं। कोई लेटर जो होता है इंग्लिश में या हिंदी में वो डबल नहीं होता। हम लोग ये बहुत गलत बोलते हैं। तो हम आते हैं THREE, FOUR। अब ऐसे ही जो लेटर्स आ रहे हैं, मुझे ये बताइए 1 to 100 में कौन कौन से लेटर नहीं आते हैं? अच्छा, Z हो गया आपके अकॉर्डिंग, Y हो गया, और Y आता है ना? और कोई बताना चाहेगा? P। अच्छा, P नहीं आता, ठीक है, और Q, वेरी गुड। और कौन बताएगा? R नहीं आता, FOUR 4 नहीं होता। मैं देखिए यहाँ पे आपको परेशान करने बिल्कुल नहीं आई हूँ कि मैं आपको आते ही आप घबरा जाओ कि मैं यहाँ पे आई हूँ आपको परेशान करने। सोचिए, क्या नहीं आता? यू नहीं आता, यू, ये मैंने बहुत सिंपल, सी नहीं आता, एग्जैक्टली सी। तो हमारे अभी Z निकल के आया है करेक्ट आंसर, Q निकल के आया है, P निकल के आया है, C निकल के आया है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा मैंने आप सबसे, J, ठीक है, T, D, 100, M, K, O, FOUR, TWO, ONE1, A, करेक्ट, A। और मैं देखिए सिर्फ ये जानने आई हूं कि यहाँ पे आप सबके बीच में कौन से बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम है। सब कुछ अगर आपको आता तो आपको स्कूल आने की जरूरत थी? आप यहाँ आए तो आप सीखने के लिए आए, और जब सीखने के लिए आए तो सीख क्यों नहीं रहे? और ये माइनर सी चीजें मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, ये तो आपके दिमाग में यूं बस ही होनी चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर आप कोई नंबर, कोई रूल आपको याद करना है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे है, तो ये तरीका आपको बताया। अगर आपने ये चीज याद कर ली तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कि जैसे आपसे सडनली किसी ने पूछा बी के बाद क्या आता है, आप तुरंत बताएंगे सी, लेकिन इन केस कोई भूल जाता है या इन केस हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी आपको आगे जाके रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। रीजनिंग का सबसे मेन टॉपिक, पहला टॉपिक अल्फाबेट है। साबिर सर आप तो तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उसमें ये चीजें आ रही हैं। सबसे पहला यही काम है कि उसमें अल्फाबेट आता है, और जब तक आपका अल्फाबेट क्लियर नहीं है ये टॉपिक, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आपने कभी प्रिपरेशन करनी है, आपका कोई ना कोई एम तो होगा, कि कोई एम नहीं है, ऐसे ही आ गए। किसी को डॉक्टर बनना होगा, किसी को इंजीनियर बनना होगा, बनना है या नहीं? टीचर भी बनना है तो सबसे ज्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि टीचर ही इंजीनियर भी बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है। तो आप मुझे ये नॉर्मल सी चीजें अगर नहीं बता पा रहे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी है। तो वो पढ़ाई में आप क्यों डिस्कस क्यों नहीं करते सबसे? अब आप एक चीज, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन, वो भी है, मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, हिंदी का क्वेश्चन है। हम लोग ने हमेशा पढ़ा है आ की कोई मात्रा नहीं, पढ़ा है? बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, सब पढ़ा है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, क्यों नहीं होती? हमेशा कहा जाता है आ की कोई मात्रा नहीं, ऐसे लिखा रहता है, क्या मतलब होता है इसका? क्या रियल में आ की कोई मात्रा नहीं होती? नहीं मालूम आपको? कोई बोलना चाहेगा, कोई बताएगा? स्पीक अप फास्ट। छोटे आ की मात्रा हर लेटर में है, हिंदी के हर वर्ड में है। वर्ड माला पढ़ी है?
हर वर्ड में छोटे आ की मात्रा मिली हुई है। अगर आपका आ में क में आ नहीं मिला है, का में आ आपका ऑलरेडी रहता है, एक्चुअली इसके बिना ये नहीं होता, ये का में ऑलरेडी आ मिला रहता है। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब आधा का या फिर ये हलंत पढ़ा है, ये आधा का या हलंत, इसका मतलब होता है हाफ। जब तक इसमें छोटा आ नहीं मिला होगा ये ऑलरेडी मिला होता है, जब तक ये नहीं मिलेगा ये क नहीं बनेगा, ये ख नहीं बनेगा। हम बोलते हैं बच्चा, तो ब ये आधा चा, तो ये जो आधा चा है इसमें आ नहीं मिला है। कभी ये सब चीजों पे फोकस किया कि हर लेटर का, हर एक चीज का वैल्यू होती है। हिंदी की टीचर कौन है यहाँ पे फ्री इस टाइम में? तो ये सारी चीजें तो खैर चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैम आपको भी शायद पता होगा कि यहाँ पे हाफ, इसका मतलब क्या होता है? हाफ होता है जब तक हम किसी चीज में छोटा आ नहीं मिलाते हैं वो क्या होता है? हाफ होता है। इसलिए आपको ये याद रखना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारी माइनर सी। हम कोई भी चीज सीखने के लिए, अब हम इंग्लिश ग्रामर में एक बार फिर से वापस आते हैं, ठीक है? सबसे छोटी आपको स्मॉलेस्ट यूनिट पता चल गई, ए बी सी डी, ये सब अलग अलग है। फिर उससे ऊपर क्या आया? अल्फाबेट। क्या आया? अल्फाबेट। अल्फाबेट में आपने डिवाइड किया किसमें? इंग्लिश को किसमें डिवाइड किया? दो चीजों में डिवाइड होता है, क्या? वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब मुझे वोवेल्स बताइए कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। हम सब ने सुना है कि ए ई आई ओ यू बहुत इंपॉर्टेंट है किसी, यानी आपके साउंड से इनसे आवाज आती है, जो साउंड तो वैसे कॉन्सोनेंट के निकलते हैं, लेकिन इनके बिना वर्ड नहीं बनता है। ऐसा कुछ सुना है ना? जैसे मात्रा में वर्ड नहीं प्रॉपर बन पाता, लेकिन कुछ ही वर्ड बनते, कालामा कलम, कामाला कमल, कुछ ही होते ना। इसमें ऐसा कौन सा ऐसा वर्ड होता है जो बिना वोवेल का यूज किए बनता है? फ्लाई। करेक्ट, क्लैप फॉर हिम। और कोई ट्राई करना चाहेगा? और कोई ट्राई करना चाहेगा? आप सब स्मार्ट हो, मुझसे ज्यादा, इन सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग का जो ब्रेन है वो अभी लिमिटेड है। हम लोग को बहुत सारी चीजें, बहुत पर्सनल प्रॉब्लम, घर के इश्यूज, सारी चीजें सब उनको लेके चलते हैं, फिर भी इतनी चीजें दिमाग में रख के आपको पढ़ाते हैं। लेकिन आपको सोचने के लिए बहुत अभी चीजें कम है आपके पास, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड दायरा, उसके बाद आपसे गलतियां हो रही हैं। आपको सोचना है, सबसे जरूरी आप खुद को, खुद के बारे में समझिए, एनालाइज करिए, खुद के बारे में सोचिए आप कि कहाँ पे कमी रह जा रही है। कभी आपने सोचा? मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, वो उसने बोला फ्लाइट, करेक्ट है। क्या और कोई वर्ड नहीं है? स्काई, ट्राई, शाई, 2 लेटर वर्ड, माई, बाय, करेक्ट? ठीक है। अब इसी के साथ हम अगर आपका एक चीज ये देखते हैं, कोई बड़े से बड़ा वर्ड जो विदाउट वोवेल है, कौन है? टाइम कम है सर, छुट्टी करनी है, वाइंड अप करना? हाँ अच्छा ठीक। मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा वर्ड कौन सा बन सकता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, रिदम। ये सुना है म्यूजिक की क्लास में, या म्यूजिक से जुड़ा एक वर्ड है रिदम। ये आपका, इसमें कहीं भी वोवेल आ रहा है? कोई एक ऐसा वर्ड बताइए जिसमें सारे वोवेल्स आ रहे हो। एजुकेशन, करेक्ट। एजुकेशन में आपके सारे वर्ड्स आ रहे, सारे वोवेल्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें, इन पे ही हमें फोकस करना है। प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? हाँ हो रही हैं। जब गलतियां पता चलेंगी तभी तो हम उनमें सुधार करेंगे ना। स्पीच देकर कोई फायदा नहीं कि हम आपसे ये कहें कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। हम रियल में क्या करेंगे हमें वो पता होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम हम तक आनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं, प्राइम नंबर सिंपल, आपकी लैंग्वेज बता रहे हैं। प्राइम नंबर
या तो खुद का दोस्त होता है या 1 का दोस्त होता है, यानी 1 का फ्रेंड और खुद का फ्रेंड जो अपनी बात या तो खुद से शेयर करता है या 1 से शेयर करता है, वो कौन है? प्राइम नंबर। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो एक 1 तो होता ही होता है, खुद तो होता ही होता है, लेकिन उसका एक और फ्रेंड होता है या एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो होता है कॉम्पोजिट। तो जो लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 1 2, करेक्ट। लीस्ट प्राइम नंबर क्या हमारा? 2। और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर 2 क्यों है? 1 into 2 is equal to 2, 2 into 1 is equal to 2। इसके अलावा कोई है इसका फैक्टर? नहीं है ना। लेकिन जब हम आते हैं 4 पे, 3 भी नहीं होता, 3 भी प्राइम नंबर है लेकिन वो लीस्ट नहीं है। 4 कॉम्पोजिट नंबर है। 4, 1 into 4 और 2 into 2 और 4 तो ऑलरेडी है ही आपका। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको अपने थोड़ा सा चीजें समझिए, थोड़ा खुद एनालाइज करिए कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। खुद को खुद से इंट्रोड्यूस कराइए कि हमारा बेसिक जो जब तक क्लियर नहीं होगा, हम चाहे जितनी भी बड़ी क्लास में पढ़े जितना भी ऊपर जाएं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे आपसे मिलेंगे, आप जब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होके आएंगे इंशाल्लाह, तो तब बातें होंगी। अभी हम वाइंड अप करते हैं, आपके लेट हो रहा है, आप सुन जाएं। थैंक यू।